Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. So this session is about virtual functions versus normal functions. I gave you a brief idea about what virtual functions are and what is the difference between a virtual and a non-virtual function. So just pay attention on the slide in the text shown in the blue colored rectangle. This text says that there is no difference between normal function, that is non-virtual, and virtual functions as long as they are accessed using class object. देखो ऐसी बात तो नहीं है कि वर्चुअल और नॉन वर्चुअल में कोई फर्क ही नहीं होता, फिर हम पढ़ते क्यों उसको। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको कि एज लॉन्ग एज योर ऑब्जेक्ट्स आर गिविंग कॉल टू द फंक्शन, मतलब जैसे आप लिखते हो ना d1.show, d1.read, where d1 is an object and show is a function. As long as you continue calling your functions with the name of objects, with the help of objects, there is hardly any difference between virtual and non-virtual functions. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब देखते हैं वर्चुअल फंक्शन है क्या। तो आगे चलते हैं, स्लाइड में देखते हैं बेटा। पहले ये कोड दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे कोड है। We have a base class in which in the public section we have created a function void func, and along with that function declaration we started its declaration with the keyword virtual shown in red color. तो भाई वर्चुअल फंक्शन बनाना है ना, तो किसी भी फंक्शन की शुरुआत में अगर वर्चुअल लिख दिया जाए तो वो वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। मतलब अगर वर्चुअल नहीं लिखोगे, जैसा कि यहाँ देख रहे हो फंक्शन बनाते समय वर्चुअल इज मिसिंग और यहाँ पे वर्चुअल इज अवेलेबल, तो वर्चुअल फंक्शन को कैसे बनाएंगे सिंटैक्टिकली, पहले वो समझ रहे हैं हम। सिंटैक्टिकली यू सिंपली नीड टू इंक्लूड अ कीवर्ड इन द फंक्शंस हेडर। यू नीड टू स्टार्ट विद अ कीवर्ड वर्चुअल, दिस मेक्स योर फंक्शन वर्चुअल। ठीक है, ये तो सिंटैक्टिकल बात हो गई। सिंटैक्स क्या होगा अब देखो। इन दिस पर्टिकुलर कोड वी हैव अ क्लास बेस, इट हैज अ फंक्शन, सिंपली func is the name of the function, it is giving a suitable message. This is base class function, this is base function, and below this base class we have created a child class named as derived one. You can see this is class derived one. It is derived using public inheritance, मतलब यहाँ public लिखा है, protected या private नहीं है। This is public inheritance case, and we are overriding this function. I made you this thing clear earlier also. There is a concept overriding, there is another concept overloading. Overriding is something that comes into action, that comes into picture in case of inheritance only. तो overriding क्या थी? ऊपर बेस क्लास का फंक्शन जो कि इनहेरिटेंस की वजह से नीचे डायरेक्ट मिल जाता है, उसको रीकोड करने की वैसे कोई जरूरत होती नहीं है। देयर इज हार्डली एनी नीड टू रीडिफाइन दैट फंक्शन बिकॉज दिस func will be made available to the child. But in case if you wish to override it, means if in case if you wish to redefine it, so you can do that. Why redefining? Because in my derived class I do not want to give a message this is base. Instead I would like to give a message this is derived, जो कि सही बात है। तो क्योंकि मुझे फंक्शन की बॉडी चेंज करनी है, इसी चीज को रीडिफाइनिंग कहा जाता है, इसी चीज को ओवरराइडिंग कहा जाता है। ओवरराइडिंग में एक बात हमेशा याद रखना, the syntax, the header of the function which was there in base, that header should not be modified. Means here we have void func with round brackets empty. Similarly, this function also is with return type void. Function name is func and again the parentheses are empty. ठीक है, अगर हेडर चेंज किया तो ये ओवरराइडिंग नहीं ओवरलोडिंग बन जाएगा। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में आप फंक्शन की बॉडी तो बदल सकते हैं मगर आप उसका हेडर नहीं बदल सकते, और ओवरलोडिंग उल्टा होता है। ओवरलोडिंग में हेडर को बदलना ही होता है और ओवरराइडिंग में हेडर बदल ही नहीं सकते। अगर हेडर बदलोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो मैं यहाँ पे जो फंक्शन बना रहा हूं इसमें इंटेक्स लिख दूं, यहाँ अंदर ऊपर वाले में कुछ नहीं था, यहाँ पे मैं इंटेक्स लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ओवरलोडिंग? क्योंकि ये तो एज इट इज इनहेरिट होगा, फिर फंक्शन का नाम सेम है, अंदर इंटेक्स आ गया, सेम नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इज ओवरलोडिंग। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं प्रोटोटाइप शुड नॉट बी चेंज्ड,
If prototype is same, it is overriding. You are allowed to change the body of the function. तो यहाँ पे आप बेस क्लास और डिराइव क्लास में कुछ खास चीज नहीं है. मेन में देखिए एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, one object be created for the child class also. When your base class object calls the function, it calls this function. And when your derived class object calls a function, it calls its own function. तो function calling सही चल रही है. जब B ने calling करी तो मैसेज आया this is base function. जब D1 ने calling करी तो मैसेज आया this is derived function. तो I think इस स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. This is simple code. Nowhere we have written virtual. ठीक है. Now on the second slide, both slides the code is exactly same. The only difference is we have added a new keyword on this slide. बेस क्लास फंक्शन के साथ वर्चुअल कीवर्ड ऐड किया है, बाकी पूरे दोनों कोड में कोई चेंज नहीं है. ठीक है. अब ये जो वर्चुअल ऐड किया, दिस मेक्स अवर फंक्शन वर्चुअल. मगर देखो ये भी सेम है, आउटपुट भी सेम है. तो मैंने क्या कहा था, आउटपुट भी डिफरेंट नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि आपने ये लाइन पढ़ी थी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नॉन वर्चुअल एंड वर्चुअल फंक्शंस एज लॉन्ग एज दे आर एक्सेस्ड वाया क्लास ऑब्जेक्ट्स. तो आप देखो फंक्शंस एक्सेस कैसे हो रहे हैं, क्लास ऑब्जेक्ट्स के. बी डॉट पंक, d1.punc, और यहाँ पे भी देख लो b.punc एंड d1.punc. तो जब तक आप इनको क्लास ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सेस करते रहोगे, वर्चुअल लिखो या वर्चुअल ना लिखो कोई फर्क नजर आएगा ही नहीं. मतलब आज तक जितनी क्लासेस और फंक्शंस आपने बनाए हैं, आप उन सब फंक्शंस के आगे वर्चुअल लिखाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपका आउटपुट वैसा ही आता रहेगा. ठीक है. अब सवाल ये है कि सर फिर दोनों में फर्क क्या है. तो फर्क अभी आगे देखते हैं. यहाँ क्या कह रहा है देख लो. द आउटपुट ऑफ प्रीवियस टू प्रोग्राम्स शो दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नॉन वर्चुअल एंड वर्चुअल फंक्शंस एज लॉन्ग एज दे आर एक्सेस यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स. तो जब तक क्लास ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगा कोई डिफरेंस नजर नहीं आता. तो अब हम इनको क्लास ऑब्जेक्ट्स की जगह दूसरे तरीके से एक्सेस करने की बात करेंगे. जो पीछे दोनों कोड देखे बेटा, मैंने एक इमेज की फॉर्म में यहाँ पे लाके आपको दिखा दिया ताकि कंपैरिजन आपके लिए आसान हो जाए. तो जो पीछे 4 स्लाइड्स में आप कोड देख चुके हो, ये वही कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है. पहली बार वर्चुअल नहीं लिखा था, अगली बार वर्चुअल लिख दिया गया है. आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया है. उन्हीं दोनों स्लाइड्स को क्लब करके एक ही स्क्रीन पे लाके आपको दे दिया ताकि आपके लिए चीजों को कोरिलेट करना, कंपेयर करना आसान हो जाए. तो वर्चुअल लिखें या वर्चुअल ना लिखें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा अभी तक. अब आगे आएगा डिफरेंस. अभी तो विदाउट पॉइंटर्स है ना कॉलिंग. यू आर कॉलिंग फंक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स, नॉट विद पॉइंटर्स. अब देखो अब क्या हो गया. नॉन वर्चुअल फंक्शन व्हेन एक्सेस यूजिंग पॉइंटर्स. अब पॉइंटर्स की बात आ गई है. फंक्शन कॉलिंग ऑब्जेक्ट से नहीं हो रही है. देखो मेन देखो ध्यान से. क्लासेस में कोई चेंज नहीं आया है. ना तो मैंने बेस क्लास का कोड चेंज किया है, ना ही मैंने डिराइव्ड क्लास का कोड चेंज किया है. द कोड इन द बेस एंड कोड इन द डिराइव्ड आई हैव नॉट चेंज्ड. इट इज the same as on the previous slide. कुछ change नहीं है. Only thing is inside main I have changed few things. First thing is I created a base class pointer. I created base class object, a derived class object, and using the base class pointer, I made this base class pointer first of all point to base class object. तो ये base pointer को मैंने किसका पता दे दिया, B का पता. तो जब pointer के पास B का एड्रेस है और मैं pointer से फंक्शन कॉल करूंगा तो वो बेस वाले फंक्शन को कॉल करेगा. यानी आउटपुट में क्या आना चाहिए, दिस इज बेस. देखो दिस इज बेस आ रहा है. मगर जब मैं अपने पॉइंटर को चाइल्ड का एड्रेस दे दूं, d1 इज योर चाइल्ड, दिस इज चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. व्हेन आई असाइन माय पॉइंटर द एड्रेस ऑफ चाइल्ड, माय पॉइंटर शुड कॉल द चाइल्ड क्लास फंक्शन. उसको ये कॉल करना चाहिए दिस इज डिराइव्ड वन. मगर देखिए आउटपुट ऐसा नहीं हो रहा है. ठीक है. ये कॉलिंग सही नहीं हो रही है. माई पॉइंटर हैज द एड्रेस ऑफ चाइल्ड, इट शुड कॉल द चाइल्ड क्लास फंक्शन, बट इट इज नॉट कॉलिंग चाइल्ड क्लास फंक्शन. इंस्टेड इट इज गिविंग अ रॉन्ग कॉल, इट इज स्टिल कॉलिंग बेस. तो दिस इज अ प्रॉब्लम. नॉन वर्चुअल के केस में जब पॉइंटर से कॉलिंग करोगे, कॉलिंग का ऑर्डर सही नहीं आएगा. सही करने के लिए यू नीड टू राइट वर्चुअल अलॉन्ग विथ. अब पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में फर्क सिर्फ ये लाल रंग वाले वर्चुअल कीवर्ड में है. देखो बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है. आपके सामने आप देख सकते हैं. ओनली थिंग इज नाउ आई हैव एडेड वर्चुअल. द मोमेंट यू मेक योर बेस क्लास फंक्शन वर्चुअल, ऑर्डर ऑफ कॉलिंग इज रेक्टिफाइड. इट इज नाउ परफेक्ट एंड करेक्ट. अब बेस क्लास के पास पहले जब बेस का पता था तो वो बेस कॉल कर रहा है, मगर जब बाद में बेस क्लास पॉइंटर को
डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट का पता दे दिया तो वो डिराइव्ड के फंक्शन को कॉल करना चाहिए था और वो सही से कर रहा है। मतलब वर्चुअल लिखते ही पॉइंटर्स के साथ में फर्क नजर आया और ये राइट वे है काम करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें थी उनको इस स्लाइड पे फिर से कंपेयर किया है। पीछे की 4 स्लाइड्स एक साथ लाके यहाँ स्क्रीन पे एक इमेज के फॉर्म में आपको दिखा दी गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि देखिए बेस कॉल्ड एंड डिराइव्ड कॉल, अर्लियर इट वाज बेस बेस। तो दोनों कोड कंपेयर कर दिए हैं आपको। पॉइंटर्स के साथ कॉलिंग हो रही है, आप ये भी देख सकते हैं। दिस इज व्हेन वी क्रिएट पॉइंटर्स एंड वी ट्राई टू कॉल फंक्शंस। ठीक है, अब आगे क्या बात आती है कि सर गलत क्यों हो रहा था, व्हाई दैट कॉलिंग वाज नॉट हैपनिंग इन द वे इट शुड हैव बीन, व्हाई वर्चुअल, व्हाई वी नीड टू मेक आवर फंक्शंस वर्चुअल। तो वी नीड टू लुक एट कंपैरिजन ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग। तो स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है उसको समझ लीजिए। स्टैटिक का मतलब होता है कंपाइल टाइम बाइंडिंग, या इसको बोला जाता है अर्ली बाइंडिंग। अब ये बाइंडिंग क्या है, स्टैटिक क्या है? बाइंडिंग आप समझ सकते हो जब भी कोई फंक्शन कॉल होना होता है, तो जब आप ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल करते हो तो कंपाइलर देखता है कि ये फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा है, मतलब किसके साथ बाइंड कराया जाए, किसके साथ जोड़ा जाए। तो ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन का जुड़ना, ठीक है, उसको कहेंगे बाइंडिंग। फंक्शन का कौन सा कोड किस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा उसको वर्ड को हम बोलेंगे बाइंडिंग। बाइंडिंग दो तरह की हो सकती है, स्टैटिक या डायनेमिक, या फिर हम बोल सकते हैं अर्ली, लेट, या हम बोल सकते हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम। ठीक है, तो स्टैटिक की जगह अर्ली बोले, कंपाइल टाइम बोले, सब एक ही चीज होती है। तो स्टैटिक बाइंडिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है इसका फैसला आप कंपाइल टाइम पे करते हैं। ठीक है, तो जब हम फैसला कंपाइल टाइम पे करते हैं तो क्या होता है, आप देखिए कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को क्या दिखाई देता है कि आपके पॉइंटर का टाइप क्या है। देखिए मेरा कर्सर जहां मूव हो रहा है वो बीपी पॉइंटर बनाया है। व्हाट इज द टाइप ऑफ माय पॉइंटर? इट इज बेस। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर कैन ओनली बी एग्जामिन्ड एट रन टाइम। इस बीपी के कंटेंट्स क्या होंगे? दिस कैन ओनली बी एग्जामिन्ड ड्यूरिंग रन टाइम। कंपाइल टाइम वी ओनली हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ माय पॉइंटर। अब कंपाइल टाइम पे अगर आपने बाइंडिंग करा दी फंक्शंस के साथ, ये पॉइंटर की बाइंडिंग फंक्शन के साथ कराओगे तो उसको क्या नजर आ रहा है, उसको कहां दिख रहा है कि बीपी में एड्रेस किसका है, एड्रेस क्या है, यानी बीपी के कंटेंट्स क्या है, वो तो रन टाइम पे नजर आएंगे। कंपाइल टाइम पे तो हमें क्या दिखता है, सिर्फ टाइप दिखता है। टाइप क्या है? बेस। तो यहाँ पे अगर जो बाइंडिंग होगी कंपाइल टाइम पे वो क्या हो जाएगी, बेस के साथ। यहाँ पे भी बेस के साथ होगी, यहाँ पे भी बेस के साथ होगी। तो अर्ली बाइंडिंग की वजह से, क्योंकि बाइंडिंग जल्दी कर दी गई, रन टाइम का वेट ही नहीं किया गया, बाइंडिंग जल्दी कर दी गई, तो बाइंडिंग गलत हो गई। उसकी वजह से जब ये फंक्शन कॉलिंग नीचे वाला हुआ तो उसने डिराइव की जगह बेस को ही दोबारा कॉल कर दिया। मगर द मोमेंट यू मेक योर फंक्शन वर्चुअल, अर्ली बाइंडिंग नॉट हैपेंस, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज लेट बाइंडिंग। अब कंपाइलर क्या करेगा, फंक्शन की बाइंडिंग अर्ली फेजेस में कंपाइल टाइम के दौरान स्टैटिकली नहीं करेगा। इट विल वेट फॉर द एग्जीक्यूशन टू स्टार्ट, रन टाइम टू कम, एंड विल देन डू द बाइंडिंग। और जब रन टाइम पे बाइंडिंग होगी तो बीपी को दिख रहा होगा एड्रेस किसका है, बी का एड्रेस है तो बेस के साथ जुड़ेगा, और अगर डिराइव का एड्रेस है तो वो डिराइव के साथ जुड़ेगा। कॉलिंग ऑर्डर ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा, ये एक बार रिपीट कर दो प्लीज। Okay. In case of virtual and non-virtual calls, whenever you try to call your function with the help of pointer, तो pointer actually binds to the body of function. तो उसको क्या है, देखो आपके पास दो फंक्शन की बॉडीज हैं, one that is there in base and one that is there in the child. सवाल ये है कि पॉइंटर इसके साथ जुड़े या नीचे वाले के साथ जुड़े, बाइंड किसके साथ हो। अर्ली बाइंडिंग के केस में फैसला कब होता है, अर्ली फेजेस में होता है। अर्ली फेजेस में आपके पास सिर्फ ये जानकारी होती है कि आपके पॉइंटर का टाइप क्या है। वी ओनली नो द टाइप ऑफ अवर पॉइंटर। कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर तो कब पता चलेंगे, रन टाइम पे, लेट केसेस में पता चलेंगे। अर्ली केस में हमें नहीं दिखता कि क्या एड्रेस है उसमें, तो हमें क्या दिख रहा होता है, सिर्फ टाइप। टाइप क्योंकि बेस है, तो बोथ टाइम्स आवर पॉइंटर बाइंड्स विद द बेस क्लास डेफिनेशन, एंड बोथ इन बोथ केसेस यू सी दैट बेस इज बीइंग कॉल्ड, बेस का फंक्शन कॉल हो रहा है, जो कि गलत है। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि बाइंडिंग जो है वो अर्ली ना हो, बाइंडिंग कब हो, वो लेट फेजेस में रन टाइम पे हो।
क्योंकि रन टाइम पे हमें दिखने लग जाएगा हमारे पॉइंटर के पास एड्रेस किसका है। रन टाइम पे जब आपको दिखेगा आपके पॉइंटर के पास एड्रेस बेस का है, तो वो बेस के फंक्शन से बाइंडिंग करेगा, और जब उसके कंटेंट बदल जाएंगे रन टाइम पे नजर आएगा कि डिराइव का एड्रेस है, तो बाइंडिंग रन टाइम पे डिराइव के फंक्शन से होगी और ऑर्डर ऑफ कॉलिंग सही हो जाएगा। मगर अर्ली से लेट में लाने के लिए आपको अपने बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बनाना होगा। अगर आप ये लाल ऑरेंज कलर का जो वर्चुअल कीवर्ड दिख रहा है इसको हटा देंगे, मेरे कर्सर मूवमेंट को देखिए, इस वर्चुअल को हटा देंगे, तो फिर अर्ली बाइंडिंग होगी, और अर्ली बाइंडिंग में गलत बाइंडिंग हो जाती है। आप चाहते हो लेट बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग, या जिसको क्या कहते हैं, हमने बोला लेट होता है, रन टाइम होता है और डायनेमिक होता है। तो ये डायनेमिक बाइंडिंग के लिए आपको वर्चुअल लिखना पड़ता है। इसी को एक और नाम से बेटा बोला जाता है। कई बार इंटरव्यूज में कंपनीज पूछती हैं, कैन यू एक्सप्लेन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? एक से ज्यादा रूट इस पॉलीमॉर्फ, पॉली ग्रीक वर्ड है, पॉली मींस मल्टीपल, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि एक से ज्यादा फंक्शंस मौजूद हो जिनका नाम सेम हो। तो ये एक तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म है, और रन टाइम पे डिसाइड करना कि कौन सी पॉलीमॉर्फिक डेफिनेशन कॉल होनी चाहिए, इस टॉपिक को कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब एक यहाँ पे कंपैरिजन है, कंपैरिजन एग्जाम में बहुत आता है। तो स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग आपसे वाइवा में पूछें, कहीं कभी भी पूछें, हमेशा याद रखिए स्टैटिक बाइंडिंग इज कॉल्ड अर्ली और कंपाइल टाइम, डायनेमिक बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड लेट और रन टाइम। स्टैटिक बाइंडिंग in this compiler binds the function call to the function body during compilation, और यहाँ पे कब होता है? during execution। ये नॉन वर्चुअल कॉलिंग का केस होता है, ये वर्चुअल कॉलिंग का केस होता है जब आपका फंक्शन वर्चुअल बनाया जाए। अर्ली बाइंडिंग में what compiler emphasizes upon is the type of pointer, and in runtime binding what is more important is the content of pointer। टाइप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ contents are important। ठीक है, so my job was to explain you static and dynamic comparison. If you are confused, if you still have questions, please ask. Else, let us excuse me. Let us look at new topic, pure virtual functions। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो किसी भी क्लास में बेटा अगर आप एक फंक्शन को बनाते हुए शुरुआत करें वर्चुअल कीवर्ड से, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखिए, फंक्शन का नाम सोचिए, अगर आर्ग्यूमेंट से तो सोच लीजिए, खाली है तो राउंड ब्रैकेट्स खाली भी छोड़ सकते हैं। बॉडी लिखने के बजाय मैं इक्वल टू 0 लिख दूं, तो ये जो इस प्रकार की डेफिनेशन होती है अपने फंक्शन के अंदर, इस प्रकार की डेफिनेशन को लिखना कहलाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। और ये याद रखना, किसी भी क्लास में अगर एक भी फंक्शन प्योर वर्चुअल हुआ, मैंने क्या बोला, किसी भी क्लास में एक भी फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन हुआ, तो आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। अगर आप मेन में उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कंपाइलर आपको एरर दे देगा। सो आई अगेन रिपीट, इफ आवर क्लास कंटेन्स इवन अ सिंगल फंक्शन एज प्योर वर्चुअल, जो इस तरीके से डिफाइंड हो, ठीक है, देन आवर क्लास बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड यू कैनॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आई बात? अब सवाल यह है कि सर ऐसी क्लास का फायदा क्या होगा जिसके ऑब्जेक्ट्स ही नहीं बनेंगे, है ना? प्योर वर्चुअल क्यों बनाऊं फिर मैं अपने फंक्शन को, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही क्यों बनाऊं? इसको देखो, जावा की दुनिया में ऐसा वर्चुअल नहीं लिखते हैं, मगर उसमें जावा की दुनिया में एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नाम की चीज होती है, और जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, वो कॉन्क्रीट क्लास नहीं है। मैंने आपको बताया था दुनिया में दो चीजें हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट दैट वर्चुअली एग्जिस्ट, कॉन्क्रीट दैट फिजिकली एग्जिस्ट। ठीक है, आप और मैं कॉन्क्रीट एंटिटीज हैं, हम रियल वर्ल्ड में जगह लेते हैं, हमें छू के फील किया जा सकता है। मगर आपका बैंक अकाउंट और मेरा बैंक अकाउंट वो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होगा, मतलब कोई बैंक अकाउंट को जाके छू के नहीं देख सकता। हाँ, बैंक बैलेंस होगा, उसमें वैल्यू भी होगी, मगर छू के कैसे देखूं बैंक अकाउंट को? तो एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज हो गई? जो काल्पनिक है, जो कल्पनाओं में है, मगर उसका हकीकत में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो गया? दैट इज वर्चुअल, दैट एग्जिस्ट वर्चुअली, मींस यू कैनॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। व्हाई सो? Reason is very simple. Abstract class contains incomplete function. Don't you think the function written here in magenta font, this is incomplete function. Where is the body?
And if your function is incomplete, that will make your class incomplete. And if your class is incomplete, there is no point creating objects for that class. मैं क्लास सोचता हूं, मैंने क्लास सोची है बनाने के लिए क्लास, और मैं कार बनाना चाहता हूं, 16 व्हीलर वाली कार, 16 व्हील्स वाली कार, ठीक है। मैं मान लीजिए कि मेरी को एक ऑर्डर मिला है, डिजाइन करना है कार को डिजाइन करना है। मारुति वालों ने मुझे वो ऑर्डर दिया है, और जो कार बनानी है उसमें 16 पहिए होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या सोचना शुरू किया, अच्छा 16 पहिए होंगे तो लंबी होगी गाड़ी, फिर उसमें दरवाजे कितने होंगे, सोच लिया जी 6 दरवाजे होंगे, ठीक है। इंजन कितना बड़ा लगना है, इतने बीएचपी का इंजन लगना है, बहुत सारी चीजें मैंने सोच ली हैं। मगर वो इतनी बड़ी गाड़ी जब तेज चलेगी तो उसको रोकने के लिए ब्रेकिंग मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, ब्रेक्स कैसे होने चाहिए, हाइड्रोलिक्स या डिस्क, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि मेरी क्लास में जो मैं कार सोच रहा हूँ 16 पहियों वाली कार, उसमें ब्रेक वाला फंक्शन कैसा होगा, मुझे अभी क्लियर नहीं है। मगर मैं बाकी फंक्शन सोच पा रहा हूँ कैसे होंगे, एसी कितने टन का लगेगा, इंजन कैसा लगेगा, दरवाजे कितने, सब वो मैं सब सोच लिया। ब्रेक का लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करूंगा, मैं अपने ब्रेक वाले फंक्शन को वर्चुअल वॉइड ब्रेक इक्वल टू 0 लिख दूंगा, मतलब दिस फंक्शन इज इनकम्प्लीट। अब जिस कार के अंदर ब्रेक ही नहीं है उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए क्या रियल वर्ल्ड में, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऐसे ही होना चाहिए ना। जब तक आप ब्रेक लगाना नहीं सीख जाते, जब तक ब्रेकिंग फंक्शन ऐड नहीं हो जाता, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर दैट क्लास। तो जो क्लास में इनकम्प्लीट फंक्शंस होंगे उनके ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। अब आप कहोगे सर ऐसी क्लास का फायदा क्या, बेटा मारुति वालों ने ना मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं सिर्फ इस चीज के सोचने के लिए कि सर सोच के बताओ कि उसमें क्या क्या होना चाहिए ऐसी गाड़ी में। तो क्या मैं सोचूं भी नहीं, मुझे 2 लाख चाहिए भाई, मैं सोचूंगा, मैं डिजाइन बनाना शुरू करूंगा, जो चीजें मुझे आती हैं वो मैं कोड कर दूंगा, जो कोड मुझे क्लियर नहीं हो रहा है वो मैं अभी कोड नहीं करूंगा। अच्छा मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल यू आर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर सम शॉपिंग मॉल, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल सॉफ्टवेयर जो बनाओगे उसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत कुछ होगा। मगर एक कस्टमर क्लास है जिसमें डिस्काउंट फंक्शन है। मैंने उस शॉपिंग मॉल के ओनर से पूछा सर आप डिस्काउंट पॉलिसी बता दो मुझे, आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट कैसे दोगे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हो सकता है वो मुझे ये बोले कि सर डिस्काउंट्स के बारे में अभी हमने विचार नहीं किया, विल डिस्कस एंड विल लेट यू नो। तो जब मुझे डिस्काउंट नहीं बता रहा तो मैं फंक्शन कैसे लिख सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से 10% डिस्काउंट डाल सकता हूँ क्या, वो मुझे फायर कर देगा, है ना। आई कैनॉट ऐड दैट फंक्शन अनलेस एंड अंटिल द ओनर टेल्स मी कि सर दिस इज अवर डिस्काउंट पॉलिसी। बट स्टिल even if he is not clear about the discount policy, other things I am supposed to develop, जो आता है जो बता रहा है वो तो बनाऊं ना। जो फंक्शन नहीं मालूम उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं वर्चुअल वॉइड डिस्काउंट इक्वल टू 0 लिख के क्लास में छोड़ दूंगा। ऐसा करने से सेफ क्या रहेगा, क्लास तो बन जाएगी, कोड कंपाइल भी हो जाएगा, मगर उस क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देगा कंपाइलर मुझे, सेफ्टी मिल गई मुझे। और कोड कंपाइल हो गया, बाकी चीजें चल रही हैं, ऑब्जेक्ट मत बनाना बस, बाकी जो मर्जी करते रहो, आपका कोड रन होगा। जिस समय आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एरर आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मगर आपको क्या लिबर्टी मिल गई, आप कम से कम बाकी चीजें जो जानते हो उनका कोड लिखो, आगे काम करना शुरू करो, ठीक है। इसलिए पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। ये अगली स्क्रीन पे आने वाला होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एक क्लास है शेप 2D, 2 डायमेंशनल शेप्स। अब 2 डायमेंशनल शेप्स विल हैव डेफिनेटली 2 डायमेंशंस, dim1 and dim2। बट इफ आई आस्क यू टू डिजाइन अ एरिया फंक्शन फॉर दिस क्लास, मैं आपको कहूँ 2 डायमेंशनल शेप के लिए एरिया का फॉर्मूला बताओ, तो आपका सवाल होगा सर आपकी शेप क्या है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, सबका फॉर्मूला अलग होता है। मैं कहूंगा मुझे क्लियर नहीं है, तो 2 डायमेंशनल शेप है ये, दिस थिंग इज क्लियर, बट वेदर इट इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रिपीजियम और सम अदर फिगर, वो मुझे नहीं मालूम है, मुझे एरिया का फॉर्मूला नहीं आता। तो फिर भाई जब फॉर्मूला मालूम ही नहीं है तो क्या लिखोगे, वर्चुअल वॉइड एरिया इक्वल टू 0 और बाकी चीजें लिखते जाओ। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये तो सीधी सी बात है, मगर यूजिंग इनहेरिटेंस आई कैन क्रिएट अ क्लास रेक्टेंगल यूजिंग दिस शेप 2D। मैंने पब्लिक इनहेरिटेंस लिया तो dim1 dim2 इसमें आ जाएगा, एरिया फंक्शन भी इसमें आ जाएगा। मैं एरिया को ओवरराइड करके रीडिफाइन कर रहा हूं, और रेक्टेंगल के केस में आई नो द फॉर्मूला, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला dim1 into dim2। सिमिलरली एक और बच्चा है जो कहता है सर मैं ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो भी शेप 2D को लेके चल रहा है।
उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट. माय फॉर्मूला वाज डिफरेंट, अदर पर्सन's फॉर्मूला इज डिफरेंट. बोथ आर the classes developed by maybe by the same person or by two different people, but both of us are utilizing this class only. Using inheritance we are making use of this class only. ठीक है. तो यहाँ पे वर्चुअल वॉइड एरिया इक्वल टू 0 क्यों रखा था? क्योंकि उसकी बॉडी लिखना जानता ही नहीं था मैं. Rectangles body we know, triangles body we know, but if somebody asks me what will be the area for shape 2D, my answer is I don't know. शेप तो बताओ पहले, फॉर्मूला कहां से बताऊं, है ना? तो इसलिए बनाते हैं वर्चुअल वॉइड फंक्शंस. ये प्योर वर्चुअल फंक्शंस इसलिए बनाए जाते हैं. दिस अलाउज यू टू डेफर द डेवलपमेंट. डेफर द डेवलपमेंट से क्या मतलब हुआ? इस फंक्शन का जो डेवलपमेंट होना था, आई हैव डेफर्ड. डेफर्ड जब ये रेक्टेंगल क्लास आएगी later at some later stage, it will decide what body should be there in the function. Triangle class will decide the body the way it wants. वो अपने आप करेगा. तो अक्सर पूछते हैं purpose and benefits of abstract class. Purpose of abstract class is to provide an appropriate base class from which other classes can be inherited. Abstract class cannot be used to instantiate objects. ये तो पक्की सी बात है. But serves as an interface. Attempting to instantiate an object of abstract class causes compilation error. अब you can try out. आप घर पे करके देख सकते हो. एक abstract class बनाना, जिसके यही वाली बना लेना. ठीक है. इसके अंदर ये जो फंक्शन रखा है ये रख देना और शेप 2D का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करना. मेन में आप लिखना शेप 2D S1, बनेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा आपको. मगर रेक्टेंगल्स ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट. RT ट्राइंगल ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट, बट वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दिस शेप 2D. अच्छा, इसमें क्या बात थी? कारण क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए? एट टाइम्स वी डू नॉट नो व्हाट कोड टू ऐड इन अ फंक्शन लाइक एरिया फंक्शन इन शेप 2D. इस कारण से बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास. दूसरा कारण क्या है? समटाइम्स वी वांट आवर इंप्लीमेंटर क्लास टू डिसाइड व्हाट कोड इज बेस्ट एंड अलाउ इंप्लीमेंटर टू ओवरराइड फंक्शंस इन डायरेक्ट क्लास. सो दीज आर द टू रीजंस ड्यू टू व्हिच वी क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. ठीक है. कोई क्वेश्चन, कहीं कोई कंफ्यूजन, प्लीज बता दो. किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, आप प्लीज बताइए मुझे कि सर ये नहीं समझ में आया. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के दो कारण थे, मैंने आपको बताए हैं. कैसे बनाते हैं? यू नीड टू ऐड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन. सवाल है कि सर प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनता है? वर्चुअल लिखिए, रिटर्न टाइप लिखिए, फंक्शन का नाम इक्वल टू 0 लिख दीजिए, बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन. अब जिस क्लास में एक भी फंक्शन प्योर वर्चुअल होता है वो क्लास इनकम्प्लीट है, उसके ऑब्जेक्ट्स कंपाइलर नहीं बनाने देगा. इसीलिए इनकम्प्लीट नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है उसका. होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल इन क्लास. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सप्लेन व्हाई डिस्ट्रक्टर्स शुड बी वर्चुअल. ये डिस्ट्रक्टर्स वर्चुअल क्यों होने चाहिए? ठीक है. डिस्ट्रक्टर्स याद है ना? कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर, दे हैव सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास. Constructor is used for initialization. Whatever resources it has allocated or initialized can be freed up later on when the object goes out of scope with the help of destructor. Difference syntactically, constructors have same name as that of class. Destructors also have same name, but they are preceded with a tiled character. Constructors can be overloaded, destructors cannot be overloaded. These are some properties that we looked at while learning constructors, destructors and classes. अगर याद नहीं है तो उसके लिए आप पिछले मेरे वीडियोस को रेफर कर लेना, या जैसा आपको ठीक लगे आप पीपीटी को भी रेफर कर सकते हैं. ठीक है. अभी सवाल ये है कि क्लास में जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं ना बेटा, उनको वर्चुअल बनाना चाहिए. ठीक. ऐसा क्यों? ये एक फैक्ट है, ऐसा ही करना चाहिए. मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए. अभी प्रूफ भी कर दूंगा कि क्यों. ठीक है. दूसरी चीज हमेशा याद रखना, कंस्ट्रक्टर्स को कभी वर्चुअल नहीं बना सकते. कंस्ट्रक्टर वर्चुअल बन ही नहीं सकता और डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बनाना ही चाहिए, ऐसा आपको कहा जा रहा है. अब रीजन समझा देते हैं कि क्यों. चलो रीजन देख लेते हैं. अब यहाँ पे देखो, आपके पास एक क्लास है ह्यूमन बीइंग. इट हैज अ कंस्ट्रक्टर एंड हैज अ डिस्ट्रक्टर. सिमिलरली वी आर क्रिएटिंग अनदर क्लास पर्सन बाय इनहेरिटिंग दिस ह्यूमन क्लास. इट अगेन हैज अ एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. तो मैसेजेस जरा ध्यान से देख लो. इसमें कंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन है तो इसमें कंस्ट्रक्टिंग पर्सन है, इसमें डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन है, इसमें डिस्ट्रक्टिंग पर्सन है. ठीक है. अब मेन देखो, मेन में मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया. उस पॉइंटर की मदद से मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, ये ध्यान देना. ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का. माय मेन
बेस क्लास पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू चाइल्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद मेरा कोड खत्म हो गया, मैंने अपने पॉइंटर को डिलीट कर दिया। कुछ खास था ही नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कोड है। मैं यहाँ क्या दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट का पता अपने बेस क्लास पॉइंटर को दूंगा। याद रखना वर्चुअल केस में आपको बताया था योर बेस क्लास पॉइंटर कैन पॉइंट टू चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ये पीछे जो कोड आप देख रहे थे, अगर याद नहीं है तो फिर से देख लो। यहाँ पे देखो बेस क्लास पॉइंटर बीपी था, उसमें चाइल्ड क्लास का एड्रेस दिया था ना, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। वो क्या था, पहले आपने ऑब्जेक्ट बना लिया था D1, फिर D1 का एड्रेस दिया था। मगर इस कोड में क्या हो रहा है, इस कोड के अंदर डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। इस कोड में डायरेक्टली हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर है। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और किसकी मदद से, न्यू, विद द हेल्प ऑफ न्यू। तो एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा, यहाँ पे रैम में उसके लिए जगह बुक हो जाएगी। उस जगह का एड्रेस आपको HP में दे दिया जाएगा। जब आपके कोड का काम खत्म हो जाए तो आप HP को डिलीट कर देंगे और आप अपने प्रोग्राम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपकी स्क्रीन पे मैसेज क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन। डिस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ बेस क्लास का। क्यों, अर्ली बाइंडिंग में वर्चुअल नहीं लिखा है ना डिस्ट्रक्टर के आगे, देखो कहीं पे वर्चुअल नहीं लिखा हुआ मैंने डिस्ट्रक्टर को, नॉन वर्चुअल बनाया है डिस्ट्रक्टर को। तो नॉन वर्चुअल कॉलिंग में कौन सी बाइंडिंग होती है, अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, अर्ली बाइंडिंग में इंपॉर्टेंट होता है टाइप ऑफ पॉइंटर। टाइप क्या है, ह्यूमन। तो कौन सा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ह्यूमन। बेस क्लास का पॉइंटर था, उसने अपने डिस्ट्रक्टर को कॉल किया, मैसेज आ गया डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन। ये वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हो पाया क्या, ये डिस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं हुआ। जबकि आपको ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉलिंग में क्या बताया था, याद है आपको, आपको बोला था डिस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट, देन द डिस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास इज कॉल्ड। यही पढ़ाया था ना आपको, आप भूल गए हैं चीजें शायद, या हो सकता है याद भी हो आपको। मैंने पढ़ाया था कंस्ट्रक्टर्स in when we use constructors are called in the order base class constructor then the derived class, but destructors are called in reverse order। पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था, मगर कॉल किसका हो गया, पेरेंट क्लास का। क्योंकि क्या हुआ, अर्ली बाइंडिंग। प्रॉब्लम क्यों आई, बिकॉज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के केस में अर्ली बाइंडिंग हुई। अर्ली बाइंडिंग के केस में टाइप क्या था, टाइप था ह्यूमन। तो कौन से डिस्ट्रक्टर को कॉल कर डाला, ह्यूमन के डिस्ट्रक्टर को। उसने ये वाले डिस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं किया। अब सोचो अगर पर्सन क्लास ने कुछ रिसोर्सेज बुक की हुई थी तो वो मेमोरी फ्री हुई होगी, ये डिस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं हुआ ना, तो वो मेमोरी कभी फ्री ही नहीं हो पाएगी। तो ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। मगर अगर आप अपने पेरेंट क्लास डिस्ट्रक्टर के आगे वर्चुअल लिख दें, मैंने क्या कहा था, डिस्ट्रक्टर शुड बी मेड वर्चुअल। इफ यू मेक योर डिस्ट्रक्टर वर्चुअल इन द पेरेंट क्लास, then due to late binding the contents will be examined, not the type। content क्या होगा, content होगा person। तो किसका डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, ये वाला, डिस्ट्रक्टिंग पर्सन देन डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन। ये सही ऑर्डर है। अब ये वाली रिसोर्सेज भी फ्री और ये वाली रिसोर्सेज भी फ्री, ठीक है। तो इसीलिए बोला है डिस्ट्रक्टर इन द पेरेंट क्लास शुड बी वर्चुअल इन नेचर, so that late binding takes place। This is right way of binding things। late binding ही होनी चाहिए पॉइंटर्स के केस में, अर्ली बाइंडिंग से गड़बड़ हो जाती है तो राइट डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो सिंपल। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इतना ही था मेरे पास बताने के लिए। आपके पास कुछ डाउट्स क्वेश्चन हो आप प्लीज पूछ सकते हैं। So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.